Good afternoon, children. Today we are going to learn a very new topic, that is letter writing for class 7th. Let's learn it. Today we will learn formal letters. Letter writing, first of all, what are letters? Why we write letter? Letter writing is a fun way to communicate. If we have to communicate, two people have to communicate, then we write what? We write letters. Let me use a pen. Here two people have to communicate, so they will write letter, especially when they are at distance. Nowadays we write email also. Email is also a form of letter. Generally nobody writes nowadays anything through post office, but still letters are in form. Next, when we write letter, we should think who are our audience, whom we are writing for. किसको लिखना है हमको? Who are our audience? Okay, whom the letter will be given to. Okay, so before deciding our audience, we should know that letters are of our audience can be formal, informal. Formal audience होगी ये, whom we don't know but we write letter. Perhaps we know but still we write letter. जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन और ये भी हो सकता है कि जानते हो but still we have to write letter. Like government offices, your principal you know well but still you write applications to your principal. So such type of letters are formal. And now what are informal letters? Informal letters we can write to our grandmother, we can write to our friends, we can write to our cousins, we can write to our relatives. So the letters we write to relatives and our friends and our parents, they are what? Informal letters. And school offices and other government departments को लिखे जाने वाले letters, they are formal letters. Next, क्या करते हैं हम लेटर में? हाउ टू राइट, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग लेटर? देर आर 6 स्टेप्स ऑफ राइटिंग लेटर. लेट देम अंडरस्टैंड वन बाय वन. हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. लेट मी ब्रिंग ऑल ऑफ देम हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर राइटिंग टेक्स सेंडर्स एड्रेस. सेंडर कौन होता है? सेंड यानी भेजना, सेंडर यानी भेजने वाला. तो योर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, योर एड्रेस. ओके, because you are writing letter. Then we write date. Date we write in a format I will discuss in next slide. Then receiver's address. receiver जिसको मिला है, जो प्राप्त करने वाला है वो उसको. Then we write subject, salutation. Then letter body, letter में क्या है, closing and signature. These are 6 steps of formal letter writing. You have to learn them properly. If you're writing an application, that also you have to write in this format only. Okay, next है sender's address. अब sender का address क्या? अपना एड्रेस लिखना है. कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ स्टेप्स आपको बता रही हूँ. सेंडर के एड्रेस में पहले आपका होना चाहिए हाउस नंबर, देन आपकी कॉलोनी, देन आपकी सिटी. ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे. व्हेन यू वॉच द वीडियो, राइट दीज 3 स्टेप्स. ओके, देन आप लिखेंगे डेट. डेट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट आपको आना चाहिए आपका मंथ, जून 6, देन कॉमा, देन 2020. इस फॉर्मेट में आपकी डेट लिखी जाती है. बिकॉज दीज आर फॉर्मल, so we have to take care of it. Now you are in 7th class, so we have to be more careful. अब रिसीवर का एड्रेस, बिकॉज दीज आर फॉर्मल लेटर, वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द डेजिग्नेशन. लाइक हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं, वी राइट द प्रिंसिपल. अगर हम किसी ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं तो हम उस ऑफिसर की यहाँ पर डेजिग्नेशन यानी उसका पद नाम लिखेंगे. ओके, पहले पद नाम, उसके बाद उनका जो एड्रेस लेटर में दिया गया है, या जो भी जिस डिपार्टमेंट के हैं उनका डिपार्टमेंट जो भी है. जैसे स्कूल प्रिंसिपल स्कूल के होते हैं तो हम उनके द प्रिंसिपल के बाद डायरेक्ट लिखते हैं द JNV बाड़ी राइसिंग. ओके,
आफ्टर दैट सब्जेक्ट, इसमें सिटी का नेम लिखना आप मत भूलिएगा, सिटी का नाम भी लिखना है। देन पर्पस ऑफ द लेटर, पर्पस ऑफ द लेटर का मीनिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी पर्पस, किस लिए आप लेटर लिख रहे हो। एप्लीकेशन आप रिक्वेस्ट करने के लिए लिखते हो, और कुछ क्लासेस अरेंज करने के लिए लिखते हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए लिखते हो। तो ये सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर में बहुत मायने रखता है, क्योंकि पता होना चाहिए पढ़ने वाले को कि आपने लेटर क्यों लिखा है। तो सब्जेक्ट यानी पर्पस ऑफ द लेटर। ओके, इसके बाद है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मीनिंग लास्ट स्लाइड में मैंने आपको नहीं बताया था। सैल्यूटेशन फॉर्मल लेटर्स में सर मैडम ही हमेशा रहेगा, इट विल नॉट चेंज। ओके, लेटर बॉडी। अब फॉर्मल लेटर्स को लेटर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बच्चों आप अपने आइडियाज़ को, अपने क्वेश्चंस को, अपने आइडियाज़ को और अपने थॉट्स को लिखते हो। लेटर बॉडी में ही तो हम बताते हैं वाई आर वी राइटिंग लेटर, सब्जेक्ट तो हम एक लाइन में लिख देते हैं। ओके, एंड ऑल द थॉट्स यू हैव टू राइट इन सीक्वेंस, सारे थॉट्स को आपको सीक्वेंस में यानी एक एक करके लिखना है। अच्छा, शुरुआत कैसे करेंगे, इसकी बिगिनिंग कैसे करेंगे। बिगिनिंग हम इसकी इन लाइन से करते हैं, इनमें से कोई भी एक लाइन। विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है प्रिंसिपल को, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू। और अगर रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं तो इट इज़ टू रिक्वेस्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू रिक्वेस्ट दैट, दैट के बाद आप अपना जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो लिखेंगे। ओके, अच्छा, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर क्या है। क्लोजिंग एंड सिग्नेचर में बच्चों आपको योर्स फेथफुली एंड सिंसियरली लिखना होता है। देन आप अपना नेम लिखोगे। ओके, पहले क्लोजिंग एंड सिग्नेचर आपका योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली, देन आप अपना नेम लिखेंगे। अभी तक आप लोग एप्लीकेशंस लिखते थे तो आप लोग लिखते थे कि yours obediently. Now you will not write that, you will directly write yours faithfully and your name, or whatever the name given in the question, that will be written. Okay, today what you have to do, you have to just follow these steps, you have to practice these steps, and practice letter will be given tomorrow. Thank you very much.